Now, in our today's lecture, we want to discuss a last part of this chapter called as water absorbing organ. वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के पास एक ऑर्गन है, एक पार्ट है जिसके थ्रू ईच एंड एवरी प्लांट स्टार्ट्स एब्जॉर्बिंग वाटर. एंड नेम ऑफ दैट ऑर्गन यू नो वेरी वेल. रिगार्डिंग नेम ऑफ दैट ऑर्गन इज कॉल्ड रूट्स. These roots are the parts of plant body. Root is the vegetative part of plant body which is helpful to absorb water and mineral from soil. Okay? That's why root is the water absorbing organ. It's a root is called as a water absorbing organ. Even here some characteristic features are there when you study roots. Roots सबसे first characteristic feature बोलते हो आप, root is the descending part of plant body. ठीक है. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हो रूट स्टार्ट डेवलपिंग बाय रेडिकल. रेडिकल ग्रो, डिवाइड एंड रीडिवाइड इन सच ए मैनर दैट ऑलवेज इट ग्रो बिलो द सॉइल. हमेशा रूट जो है कहां ग्रो होगी? बिलो द सॉइल ग्रो होती है. ठीक है. और कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स जो है आप लोग ने पढ़े हो रूट्स के बारे में, दैट रूट्स आर ऑलवेज कॉल्ड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, रूट्स आर ऑलवेज कॉल्ड एज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड रूट्स आर ऑलवेज कॉल्ड एज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. These are few major characteristic feature so that you get details regarding roots. Now, in our today's topic, we want to study water absorbing organ, and that water absorbing organ is studied by some regions of root. It is studied in a topic called regions of root. Roots में कुछ special parts है, roots के कुछ special regions है, which are helpful to absorb water and mineral, so that you call that part as regions of roots. ठीक है. और you may call parts of some typical root. आप इसको और क्या बोल सकते हो? Parts of some typical root. When you observe the parts of some typical root, starting from tip to top, root के tip से root के top तक, root के base तक, अगर आप कुछ parts observe करते हो, तो you call that part as, name of first part is called root cap. Name of first part is called root cap. Name of second part is called helpful for cell division. Name of second part is called region of cell division, or you may call region of growth, जिसको आप region of growth भी बोल सकते हो. ठीक है. Name of third part is called region of cell elongation. Name of third part is called region of cell elongation. Name of fourth part is called region of root hair. Region of root hairs. And name of fifth part is called region of cell maturation. Region of cell maturation. इस प्रकार कोई भी रूट के पार्ट्स अगर आप स्टडी करो, टिपिकल रूट्स अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो रूट जो है 5 मेजर पार्ट से बनता है. एवरी रूट इज मेड अप ऑफ 5 मेजर पार्ट. इसका फर्स्ट पार्ट का नाम है रूट कैप. सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ सेल डिवीजन, जिसको आप रीजन ऑफ ग्रोथ बोलोगे. थर्ड पार्ट इज कॉल्ड रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, जिसको रीजन ऑफ इलोंगेशन बोला गया है. नेक्स्ट इज कॉल्ड रीजन ऑफ रूट हेयर. ठीक है, जहां से एब्जॉर्प्शन होगा. एंड लास्ट पार्ट इज कॉल्ड रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन, जिसको आप रीजन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो. जिसको आप क्या बोल सकते हो? रीजन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन. नाउ ऑब्जर्व द डायग्राम हाउ ऑल these parts are arranged. Suppose here the root starts developing in any plant body. The base of root is broad and the tip get narrow. इसमें रूट का जो बेस है वो थोड़ा नैरो, थोड़ा ब्रॉड है. दिस इज ब्रॉड बेस. दिस इज द बेस ऑफ रूट and the tip of root get narrow. This is called root tip. रूट टिप एरिया से अपने को टॉप पोजीशन पे जाना है, बेस की तरफ जाना है. रूट टिप से अगर आप बेस की तरफ जाओगे तो आपको इस प्रकार के पार्ट दिखेंगे. सबसे पहले रूट कैप दिखेगा, बाद में सेल रीजन ऑफ सेल डिवीजन दिखेगा, बाद में इलोंगेशन दिखेगा, बाद में रूट हेयर फॉर्मेशन दिखेगा, और लास्ट में रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन, जिसको रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन बोला जाएगा. So when you observe this diagram, you will observe this is the tip region. This tip region carries some special cells. ये रूट टिप पर कुछ स्पेशल सेल्स है. The special cells are compactly arranged, and these compactly arranged cells they divide and redivide continuously. Once these cells divide and redivide continuously, that's why
दिस एरिया इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ सेल डिवीजन, इसलिए एरिया को क्या बोला जाएगा, रीजन ऑफ सेल डिवीजन। एंड इन दिस एरिया ऑलवेज इन रूट देयर इज ए ग्रोथ, और यही एक एरिया है जहां पर रीजन ऑफ ग्रोथ बोला जाता है, जहां पर हमेशा सेल डिवीजन होता रहेगा। दैट एरिया इज कॉल्ड रूट टिप एरिया। दिस रूट टिप एरिया नाउ इट हैज ए कवर अराउंड इट, ये रूट टिप एरिया के टिप पर क्या है, एक कवर है। दैट कवरिंग इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल सेल, and that special cells are somewhat thick and they are again compactly arranged, so that complete root tip is well covered and protected by a cap like structure, and name of that cap like structure is called root cap। टिप जो है वो पूरा का पूरा कवर्ड है, ठीक है, और वो कवरिंग को क्या बोला गया है, रूट कैप पार्ट। दिस इज रूट कैप पार्ट। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूट कैप? रूट कैप यू कॉल इट एज इट इज द अपिकल सेल ऑफ, रूट कैप को क्या बोला जाएगा, इट इज द अपिकल सेल। इवन यू कॉल दिस रूट कैप सेल एज कैलिट्रा। रूट कैप सेल इज आल्सो कॉल्ड एज कैलिट्रा। दिस outermost protective cover is called as calyptra, ठीक है। Now what is the characteristic feature? The characteristic feature of root cap is it secretes a mucilaginous substance। ये क्या secrete करता है, एक प्रकार का mucilaginous substance secrete करता है, एक प्रकार का slimy substance secrete करता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस सीक्रेट करता है, और वो जेली लाइक सब्सटेंस किसके कांटेक्ट में रहेगा, सॉइल के कांटेक्ट में रहेगा, सो दैट ऑलवेज द सॉइल गेट वेटेड, इससे हमेशा सॉइल क्या रहेगी, वेटेड रहेगी। एंड इट्स वेरी इजी फॉर दिस रूट टू गो डीप डाउन, और ये बहुत हेल्प करेगा जिससे रूट के टिप को वो डीप लेके जाएगा। मींस व्हेन यू ऑब्जर्व द रूट कैप, द स्पेशल सेल्स आर देयर, दैट स्पेशल सेल्स हेल्प्स टू ड्रिल द सॉइल। वो स्पेशल सेल्स किस में हेल्प कर रहे हैं, काय में हेल्प कर रहे हैं, सॉइल को ड्रिल करने में हेल्प कर रहे हैं, और ड्रिल करने से इट्स हेल्पफुल सो दैट कंप्लीट रूट गो डीप डाउन, जिससे पूरी रूट जो है वो बराबर डीप होती जाएगी। उसके लिए ये स्पेशल म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस भी रिलीज करता है, ठीक है, और वो म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस हेल्प करेगा जिससे रूट जो है वो डीप डाउन, जिससे रूट जो है हमेशा डीप डाउन होती जाएगी। दैट स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड एज रूट कैप। बट इट इज अवेलेबल ओनली इन टेरेस्ट्रियल प्लांट, लेकिन सिर्फ टेरेस्ट्रियल प्लांट में ही रूट कैप रहेगा। व्हेन यू ऑब्जर्व द एक्वेटिक प्लांट, देयर इज नो नीड ऑफ रूट कैप, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रूट पॉकेट। जो एक्वेटिक प्लांट है उस एक्वेटिक प्लांट में रूट कैप नहीं रहेगा, एक्वेटिक प्लांट में रूट पॉकेट रहेगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नाउ दिस एरिया इज देयर, यू कॉल दैट एरिया इज कॉल्ड रूट टिप, एंड इन रूट टिप एरिया देयर इज ऑलवेज कॉल्ड एज रीजन ऑफ, दिस एरिया इज आल्सो कॉल्ड एज रीजन ऑफ ग्रोथ और रीजन ऑफ सेल डिवीजन, बिकॉज इन दिस एरिया मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट। क्योंकि इस एरिया में क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। दिस इज दिस एरिया वेयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट, सो दैट यू मे कॉल इट एज मेरिस्टेमेटिक रीजन, इन विच ऑलवेज दिस सेल, दिस एरिया इज दैट एरिया वेयर ऑलवेज देयर इज डिवीजन, जहां पर हमेशा क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स एंड यू कॉल दैट स्पेशल सेल्स एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्योंकि स्पेशल सेल से बना हुआ है और उस स्पेशल सेल्स को क्या बोला गया है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व दिस रीजन ऑफ ग्रोथ, एज द नेम इंडिकेट ग्रोथ, इसका मतलब हियर these cells are special cells which has a power of division। ये एक ऐसे स्पेशल सेल्स है जिसमें ऐसा पावर है कि वो डिवीजन लेता रहेगा, कंटिन्यू वहां पर डिविजन्स होते रहेंगे। दैट्स व्हाई दैट एरिया इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ ग्रोथ, रीजन ऑफ सेल डिवीजन और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज कॉल्ड रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन इज दैट पार्ट which is present above the region of मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो कहां रहेगा, region of मेरिस्टेमेटिक सेल्स के above है, and here the root cells divides in such a manner so that every root cell get elongate, जिससे सबके सब root cells क्या हो गए, elongate हो गए। So here you will observe these are the special area, and this special area is helpful so that there is elongation, there is enlargement of root cells, सभी root cells क्या हो गए, यहाँ पर enlarge हो गए। So this area is called as region of elongation, and this area is present above the region of मेरिस्टेमेटिक cells, और किसके above है, region of मेरिस्टेमेटिक cells के above है। ऐसा एरिया जो हेल्प करेगा elongation के लिए, so that the complete root get grow, जिसके कारण पूरी पूरी रूट जो है वो ग्रो होगी, ठीक है। इलास्टिसिटी बढ़ाएगा, वो रूट की क्या करेगा, इलास्टिसिटी बढ़ाएगा। दैट एरिया इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ इलोंगेशन व्हिच इज प्रेजेंट अबव द
रीजन ऑफ ग्रोथ जो कहां मौजूद है, रीजन ऑफ ग्रोथ के अबव मौजूद है। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। नेम ऑफ नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रीजन ऑफ रूट हेयर। Region of root hair. Now what do you mean by this part called region of root hair? Region of root hair is that part of root which is helpful to develop hairy projections. Which is helpful to develop hairy projections. So they are all hair-like projections. These hair-like projections are called root hair. ये hair-like projections को क्या बोला गया है? Root hair, which are very thin, very delicate, and they are nothing but a type of extension, a type of outgrowth है ये। रूट की क्या है, एक प्रकार की आउटग्रोथ है। वो आउटग्रोथ यूनिसेलुलर हेयरिंग प्रोजेक्शंस में आपको दिखेगी। इस प्रकार यूनिसेलुलर हेयर्स के रूप में जो प्रोजेक्शंस आपको दिखती है, अवेलेबिलिटी होती है, उसी को बोला गया है फोर्थ पार्ट ऑफ रीजन ऑफ रूट कॉल्ड एज रीजन ऑफ रूट हेयर। एंड दिस एरिया इज हेल्पफुल फॉर एब्जॉर्प्शन। टाइम हेल्प करता है, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सो दैट लेवल इट इज कॉल्ड एज रूट हेयर, और यू मे कॉल्ड हेयरी रूट्स। You may call root hair or you may call hairy roots. Now what is the characteristic feature of root hair? अब इस root hair का characteristic feature क्या है? The first characteristic feature of root hair is it is helpful for absorption of water, mineral. सबसे मेजर काम है इसका कि water, mineral क्या करेगा? Absorb करेगा, ठीक है? And the cells of this outer layer, ये जो outer layer था root का cell का, you call this outer layer is as epiblema. उस outer most cell को क्या बोला गया है? Epiblema. You call this outer cell as epiblema. These epiblema cells का ही आउटग्रोथ है, एक आउटवर्ड प्रोजेक्शन है, और उसी आउटवर्ड प्रोजेक्शन को बोला गया है रूट हेयर्स, which are many in number, जो बहुत सारे हैं। Each root hair they are fine, सभी रूट हेयर जो एकदम फाइन है, डेलिकेट है, यूनिसेलुलर है, एंड they are just like ट्यूब। और उसका अपीयरेंस कैसा दिखेगा आपको? ट्यूब जैसा दिखेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक प्रकार का इपिब्लेमा का ही आउटग्रोथ है, which arise on both the sides laterally, और दोनों तरफ आपको अवेलेबल मिलेंगी। They are millions in number, and these root hair are helpful for absorption. That's why this area is called as region of absorption. इसलिए root hair को और क्या बोला जा सकता है? Region of absorption, क्योंकि यही एक ऐसे एरिया है जहां से रूट जो है वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब करेगी, ठीक है? Now one more characteristic feature. When you observe this root hair, some root hair get old. Within 10 to 15 days, मात्र 10 से 15 दिन में root hair जो है वो old हो जाती है। Once they get old, they get destroyed. जैसी वो old होगी, वो root hair जो है सबके सब destroy हो जाएगी। And finally at that time, they get replaced by new root hair. और उसी समय ये जो old root hair है, जो 10 to 15 days survive करेगी, 10 to 15 days water mineral absorb करेगी, and after completing 10 to 15 days, they get die and they are replaced by new root hair। और उसी जगह पर उसी सरफेस पे एक नया रूट हेयर जो है वहां पर फॉर्म हो जाएगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूट हेयर, ठीक है? वन मोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इंक्रीजेस द एक्सपोज सरफेस एरिया। और ये क्या इंक्रीज कर रहा है? रूट हेयर एक्सपोज सरफेस एरिया बढ़ाता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा प्लांट जो है वाटर मिनरल एब्सॉर्ब करेगी। व्हेन यू ऑब्जर्व बिग ट्रीज, व्हेन यू ऑब्जर्व द प्लांट व्हिच आर पेरिनियल, they need more water। जो प्लांट पेरिनियल है, लीव लॉन्गर लाइफ, ठीक है, एटलीस्ट 40 इयर्स, 60 इयर्स, 90 इयर्स जो प्लांट सर्वाइव करते हैं, ऐसे प्लांट्स को ये एरिया ज्यादा चाहिए, बिकॉज प्लांट नीड मोर वाटर, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग समर सीजन, ठीक है? और द प्लांट विच ग्रो इन डेजर्ट एरिया दे नीड मोर वाटर। तो ऐसे समय पर रूट हेयर का सरफेस एरिया जो है एक्सपोज ज्यादा करने में हेल्प करेगा, सो दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल becomes easier. That area is called region of root hair, or you call region of absorption. Now come to last one. Name of last part is called region of cell maturation. This upper part is called as region of maturation. This part is called as region of maturation. Region of maturation. Or it is a special part of root in which the cell now get differentiated. एक ऐसा एरिया रूट का जो बेस है, जो ब्रॉडर है, उस ब्रॉडर पार्ट में जो सेल्स अब डेवलप हो गए वो पूरी तरीके से डिफरेंशिएट हो गए हैं। दे नाउ कांट डिवाइड एंड रीडिवाइड, जो वो डिवाइड और रीडिवाइड नहीं होंगे।
नाउ दे गेट मैच्योर्ड, अब ये सब के सब सेल्स यहाँ पर क्या हो गए, मैच्योर्ड हो गए हैं. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व द रीजन ऑफ मैच्योरेशन एरिया, इंटरनली द सेल्स अंडरगोज मैच्योरेशन, अंदर से अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे सेल्स जो है वो मैच्योर्ड हो गए हैं, डिफरेंशिएटेड हो गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज जो है उन्होंने डेवलप कर लिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज जो यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी. नेम ऑफ दैट कंडक्टिंग टिश्यूज आर कॉल्ड एज जाइलम एलिमेंट. देन देयर इज नीड ऑफ फ्लोएम एलिमेंट. ठीक है, दो कंडक्टिंग टिश्यूज आ गई, एक जाइलम का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, फ्लोएम का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें जाइलम जो है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, फ्लोएम जो है फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, उसका भी यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया. इवन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्मिस, इसने और एक स्पेशल टिश्यू जो है यहाँ पे डेवलप कर लिया, सेल्स डेवलप कर लिया, यू कॉल दैट स्पेशल टिश्यूज एज एंडोडर्मिस. ठीक है, इवन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स, ये कॉर्टिकल सेल्स भी इसने बना लिया. हियर देयर इज डेवलपमेंट ऑफ कॉर्टेक्स आल्सो, सम कॉर्टिकल सेल्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड. तो पूरे के पूरे सेल्स डिस्टिंग्विश हो गए, डिफरेंशिएट हो गए, जिससे जाइलम का फॉर्मेशन, फ्लोएम का फॉर्मेशन, एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन, कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन सब यहाँ पर डेवलप हो गए. इसलिए ये एक ऐसा एरिया है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ये सब सेल्स को, टिश्यूज को डेवलप करने के कारण यहाँ पर इस एरिया को और एक नाम दिया गया है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रीजन ऑफ कंडक्शन. इट इज आल्सो कॉल्ड एज रीजन ऑफ कंडक्शन. सो दैट कंप्लीट वाटर मिनरल व्हिच इज अब्सॉर्ब बाय रूट हेयर, पूरा वाटर मिनरल जो रूट हेयर के द्वारा एब्सॉर्ब हो चुका है, एब्सॉर्प्शन चालू हो गया है, वो अब नेचुरली प्लांट के एरियल पार्ट को ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा. प्लांट के एरियल पार्ट को above the ground, the parts get distributed, so that this complete structure is called as water absorbing organ, and you call this water absorbing organ as root. ठीक है, और रूट में आपने रीजन्स डिस्कस किए, मींस यहां पर ने क्या डिस्कस किए, पार्ट्स ऑफ टिपिकल रूट डिस्कस किए, और उस पार्ट्स ऑफ टिपिकल रूट में आपने देखे रूट कैप अवेलेबल है, रीजन ऑफ सेल डिवीजन अवेलेबल है, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन अवेलेबल है, रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन अवेलेबल है, और रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन अवेलेबल है. ऑल दीज पार्ट्स दे आर हेल्पफुल, देन ओनली द प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, अदरवाइज द absorption of water mineral is very difficult. Means if you cut the tip part, मेरिस्मेटिक रीजन का टिप पार्ट अगर आपने कट कर दिए, रूट हेयर का टिप पार्ट जो है वो अगर कट हो जाए, it's very difficult for plant to survive because all this tip region has more absorbing capacity as compared to others. That's why they are must in a plant body. इसलिए ये सब चीजें जो है बहुत जरूरी है प्लांट के लिए. Now come to next question called as structure of root hair. Now come to next question called as structure of root hairs. ये जो रूट देख रहे हो आप, this is called root hair. That root hair you want to study here in detail. ठीक है, एक रूट हेयर को अगर ऑब्जर्व करोगे आप अंडर माइक्रोस्कोप, if you study a single root hair under microscope, you get some details. Now what is the first characteristic feature? The first characteristic feature of root hair is, अपन पहले डिस्कस किए कि वो काफी फाइन है, थ्रेड लाइक है, डेलिकेट है, यूनिसेलुलर है, ट्यूब लाइक है, is it clear? And they are longer extension, और वो काय के longer extension है, काय के longer extension है, आउटग्रोथ है, इपिब्लेमा के आउटग्रोथ है, वो उस को बोला गया था, वो पार्ट को बोला गया था रूट हेयर. ठीक है, now when you observe this root hair, suppose this is long elongation, ये एक लॉन्ग इलोंगेशन हो गया, ये एपिब्लेमा सेल्स हो गया, और एपिब्लेमा सेल्स के द्वारा लॉन्ग इलोंगेशन क्रिएट हुआ है. Is it clear? This long elongation has its well developed nucleus, इसके अंदर उसका खुद का well developed nucleus है, and it is always double layered, और हमेशा डबल लेयर से बना हुआ है. So here you will observe this is the structure of root hair. ये रूट हेयर का स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, इस रूट हेयर में देख रहे हो आप कि एक यूनिसेलुलर आउटग्रोथ डेवलप हुआ है. वो यूनिसेलुलर आउटग्रोथ जो है काफी एक प्रकार का प्रोजेक्शन है, वो इस प्रकार का प्रोजेक्शन है कि उसकी जो वॉल है इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, टू लेयर से बनी हुई है. दो लेयर से रूट हेयर का वॉल प्रिपेयर किया हुआ है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पेक्टोसेलुलोज. दे आर कॉल्ड एज पेक्टोसेलुलोज.
root hair, the wall of root hair is called as pectocellulose. Now why it is called as pectocellulose? Because the outer wall of root hair and inner wall of root hair it get distinguished. Inner wall और outer wall जो है root hair का वो distinguish हुआ है. The outer wall is made up of pectin, जिसमें outer wall जो है कैसे बना हुआ है? It is made up of pectin and inner wall is made up of cellulose. और inner wall जो है कैसे बना हुआ है? Cellulose से बना हुआ है. So by forming outer and inner wall, outer and inner layer, they are made up of special substance called pectin and cellulose. That's why the root hair are made up of pectocellulose. इसे root hair को क्या बोला गया है? Pectocellulose. ठीक है? Now when you observe the cytoplasm, the fluid which is present here. Now the fluid which is present here, you call that fluid as cytoplasm. अंदर में fluid fill up किया हुआ है, and you call that fluid as cytoplasm. Cytoplasm is with large central vacuole. Cytoplasm है, लेकिन उस cytoplasm के सेंटर में एक बहुत big vacuole है, big cavity है, big space है, and you call that big space as vacuole. So here you will observe this is vacuole, which is present inside root hair. This is again one of the characteristic feature. ये भी एक characteristic feature हुआ है. Large central vacuole है, ठीक है? And it is colorless. और वो क्या है? Colorless है. हमेशा unbranched रहेगा. Root hair is always colorless. Root hairs are always unbranched. And the duration of survival lifespan is very short. और इसका lifespan जो है काफी short है. Hardly 10 to 15 days में हर root hair जो है वो damage हो जाएगा, injured हो जाएगा. And in that area again a root hair will form. और उस जगह पर फिर से एक नया root hair जो है form हो जाता है. Means they are very delicate. ठीक है? They are very short lifespan. उसका lifespan भी बहुत short है. And cell wall of root hair is freely permeable. और उसका जो cell wall है वो क्या है? freely permeable है. freely permeable means बराबर जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है प्लांट को वो न्यूट्रिएंट जो है वो अवेलेबल करके देगा प्लांट को. बट व्हेन यू ऑब्जर्व द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा नहीं करता. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा लेयर बना रहा है जो हेल्प करेगा रूट्स को, जिससे जो जो अवेलेबिलिटी चाहिए प्लांट को इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट जो चाहिए, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सिलेक्टिवली परमिएबल के थ्रू वो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूट हेयर. इस प्रकार का रूट हेयर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया. तो हियर वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर एंड इन टुडेस टॉपिक वी हैव स्टडीड डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट. अलग-अलग रीजन्स के ऑफ रूट के ऊपर डिस्कस किए और स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर भी स्टडी किए हैं, which gives you detailed information regarding the first part called water absorbing organ. ये आपको क्या डिटेल बताएगा कि वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन जो है प्लांट कैसे डेवलप करता है. ठीक है? कंप्लीट रूट जो है कितने पार्ट में डिस्टिंग्विश हुई है वो भी अपन डिस्कस किए और एक एक पार्ट के रोल अपन डिस्कस किए. रूट कैप का रोल क्या है, रीजन ऑफ सेल मेरिस्टेमेटिक सेल्स का रोल क्या है, देन सेल इलोंगेशन का रोल क्या है, रूट हेयर जो फॉर्म हुआ है जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है वो कैसे डेवलप हुआ है, और लास्टली अपन डिस्कस किए रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन जिसको रीजन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन बोले हैं वो भी अपन डिस्कस किए. Here we have completed our topic